हेलो व्यूअर्स, पीएसजीआई कंपनीज के वेज रिवीजन की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो व्यूअर्स, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के वेज रिवीजन को लेकर आज दो और लेटर्स फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को यूनियंस ने लिखी हैं। पहला लेटर जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन ने लिखा है। उन्होंने लिखा है, विड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द मीटिंग ऑफ आवर डेलीगेशंस in Chennai, Bengaluru, and Delhi in recent months on the subject. We are thankful for your courteous hearing and assuring early resolution of long pending wage revision. चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली में जो उनकी मीटिंग हुई थी उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी बात को ध्यान से सुना और हमें आश्वस्त किया कि जल्दी ही वेज रिवीजन हो जाएगा. We wish to reiterate that wage revision for the workforce of public sector general insurance companies is due since 1st August 2017. First round of wage revision discussion was held on 4th April 2019, wherein the then chairman GIPSA and the CMDs of GIPSA member companies assured the check of qualified unions and associations that due to the then prevailing code of conduct under the general elections in the country, they were unable to make any offer. जैसा कि हमने पहले बताया था कि 1 अगस्त 2017 से ड्यू इस वेज रिवीजन के लिए जो अप्रैल 19 में मीटिंग हुई थी उसमें इलेक्शन की वजह से जिप्सा ने किसी तरह का वेज रिवीजन का ऑफर देने से मना कर दिया था. Madam, we have made various representations to the chairman GIPSA, CMDs of respective PSGICs and also the authorities in DFS in this matter. Historically and traditionally, wage revision in banking insurance industry in our country has been implemented simultaneously on similar lines. You are aware that wage revision for banking and LIC has already been concluded, whereas there is no progress in respect of GIPSA member companies. उन्होंने कहा कि हमने कई बार रिप्रेजेंटेशन दे दी है जिप्सा के चेयरमैन और CMDs को भी, और बैंकिंग और LIC की वेज रिवीजन हर बार एक साथ होती थी, लेकिन इस बार दोनों की हो चुकी है और अभी तक जनरल इंश्योरेंस का वेज रिवीजन नहीं हो पाया है. Madam, you will kindly appreciate that insurance being an essential service, the entire workforce of GIPSA member companies have been working as corona warriors. The pandemic has taken toll of about 250 plus of our working colleagues. 200 कोरोना की इस महामारी में काम करने की वजह से हम अपने 250 से भी ज़्यादा साथियों को खो चुके हैं और ये इस बात का सबूत है कि हमने अपने सर्विस में कोई कमी नहीं रखी है. Workforce of our companies is saddled with higher volumes and responsibilities in view of continuous reduction in total strength of officers and employees, superannuation, death and VRS and absence of commensurate recruitments. रिक्रूटमेंट्स की कमी की वजह से डेथ और VRS सुपरएनुएशन की वजह से पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस के एम्प्लॉयज़ पहले से ही काम के बोझ में हैं. There must be no reason for delaying genuinely deserved wage revision pending for about 4 years now. Madam, ever since the formation in 1973, GIPSA member companies achieved various milestones on all performance parameters, including payment of dividends and fulfilling every social obligation. Participation of our companies in various initiatives of government like financial inclusion, PMSBY, Ayushman Bharat, crop and various rural insurance schemes have always been appreciated by all stakeholders. उन्होंने कहा है कि हमारे सारे काम को सभी ने सराहा है और हमने हर परिस्थिति में सरकार का साथ दिया है. Madam, it is a matter of record that our companies have the capacity to face any challenge and their workforce is absolutely committed to carry out all the directions of our owners and management. उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास पूरी क्षमता है कि मैनेजमेंट के हर निर्देश को हम पूरी तरह से पालन करके उसे पूर्ण कर सकते हैं. 7200 plus offices and 49,000 highly qualified skilled workforce. Performance of our companies can be further harnessed through proactive and motivational approach. We have been constantly following up with the issue with all concerned in GIPSA and also with authorities in DFS through various representations. Every time our delegations have been categorically assured that the matter is under active consideration. However, even after a lot of perusal and follow-up, there is no confirmation from any corner about the fate of our long-pending genuine demand. This matter is already over-delayed and we request your kind intervention. We once again request your good offices for positive and early approval in the matter. एक बार फिर से उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को ये अनुरोध किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझा सकें. दूसरी चिट्ठी जनरल इंश्योरेंस ऑफिसर ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया के जनरल इंश्योरेंस के ऑफिसर्स एसोसिएशंस के नाते यूनियन ने अपनी बात वित्त मंत्रालय तक पहुंचाने की कोशिश की है. ऑफिसर्स के एसोसिएशन ने इस बात को लिखा है कि वेज रिवीजन के इस मामले में हम आपका हस्तक्षेप चाहते हैं. उन्होंने कहा है कि कई बार इस मामले को
मीटिंग चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली में होने के बाद भी और जिप्सा के चेयरमैन और सीएमडीज के साथ बातचीत के बाद भी अभी तक ये मामला लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारे एसोसिएशन ने भी जिप्सा के सीएमडीज और चेयरमैन के साथ कई बार मीटिंग करी है, डीएफएस अथॉरिटीज़ के साथ भी हम मिले हैं और उसके बावजूद भी अभी तक बैंकिंग और एलआईसी का वेज रिवीजन होने के बाद भी हमारा मुद्दा अटका हुआ है। उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने 250 से ज़्यादा साथियों को खोया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न कारणों की वजह से ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा काम के बोझ के दबाव में हैं और वेज रिवीजन का मुद्दा जो पहले हल होना चाहिए था वो 4 साल से लंबित पड़ा हुआ है। ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी इस बात को कहा है कि 1973 के फॉर्मेशन के बाद जिप्सा मेंबर कंपनीज ने गवर्नमेंट की कई स्कीम्स में बराबर सहयोग किया है और उसकी वजह से सभी ने उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि कंपनीज किसी भी तरह की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैनेजमेंट का भी एक मोटिवेशनल अप्रोच होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि जिप्सा और डीएफएस के साथ कई बार मीटिंग के बाद और रिप्रेजेंटेशन के बाद भी और पर्सनल मीटिंग के बाद भी ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। अंत में ऑफिसर्स यूनियन ने भी वित्त मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है। ये थी वेज रिवीजन को लेकर आज की अपडेट। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब